Okay, students, next topic is reactions in solution, and this is the last topic. With this, we will finish our chapter, and you have to prepare the test for the test full chapter first. Okay, reactions in solutions. Very first, what is solution? Solution is made up of two components, solute and solvent. As you all know, solute is present in less amount. ਜਿਹੜਾ less amount 'ਚ present ਹੁੰਦਾ solute ਹੁੰਦਾ, minimum ਦੋ quantities ਹੁੰਦੀਆਂ solution ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, and solvent which is present in large amount. For example, salt plus water ਹੈ, अगर सॉल्ट लैस क्वांटिटी च तो सल्यूट हो गया, वाटर ज़्यादा च तो सॉल्वेंट हो गया। ओके, तो सल्यूशन बन जाता है। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਲਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਲਿਊਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਲਵੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਗੇਨ ਬੇਸਡ ਓਵਰ ਦਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਹੋਲ ਦਿਸ ਟੋਪਿਕ ਇਜ਼ ਓਕੇ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਟੋਪਿਕਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਫਸਟ ਵੀ ਹੈਵ ਡਨ ਵਿਦ ਲਾਈਕ ਮਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਅਤੇ ਵੋਲੀਊਮ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਾਸ ਆਫ ਕੰਪੋਨੈਂਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਲਿਊਟ ਦਾ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਮਾਸ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਮਾਸ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਟੋਟਲ ਮਾਸ ਆਫ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਇਨਟੂ 100। ਅਗਰ ਵੋਲੀਊਮ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮਾਸ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੋਲੀਊਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲਈ ਮਾਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਵੋਲੀਊਮ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲਈ ਵੋਲੀਊਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਸਲਿਊਟ ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਸਲਿਊਟ ਦਾ ਮਾਸ ਆਏਗਾ, ਨੀਚੇ ਟੋਟਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੀ ਮਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦਾ ਮਾਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਨੀਚੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ 70% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੋਲਵੈਂਟ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੇ ਟੋਟਲ ਮਾਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਜੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਮਾਸ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 70 ਗ੍ਰਾਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਲਿਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿੰਗ ਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ। ਅਗਰ ਵੋਲੀਊਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਵੋਲੀਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਮਾਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਵੋਲੀਊਮ। ਦੈਟ ਦਿਸ ਟੋਪਿਕ ਵੀ ਹੈਵ ਡਿਸਕਸਡ in detail before the empirical formula. Okay, next one term is there, ppm. Many of you are knowing well, parts per million। ਪਾਰਟਸ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੋਲੀਊਮ ਅਤੇ ਮਾਸ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਮਾਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਵੋਲੀਊਮ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਾਰਟਸ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 10⁶ ਮੀਨਸ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਟਸ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਨਸ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਔਰ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਵੋਲੀਊਮ ਦੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ppm ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਸ ਆਫ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹਦਾ ਕੱਢਣਾ, ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਟੋਟਲ ਮਾਸ ਆਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼। ਜੇ ਵੋਲੀਊਮ ਦਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 10⁶ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੋਲੀਊਮ ਆਫ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਜਾਏਗਾ, divided by total volume of solution into 10⁶। ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ppm ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀਆਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 1 ਲੀਟਰ ਹੈ, 1 ਲੀਟਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, 1000 ml ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ml 'ਚ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 350 ml ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਟਰ 'ਚ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ 1000 3.5 ਲੀਟਰ, 0.35 ਲੀਟਰ। ਇਹ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਬੈਟਰਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹ 350 ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਆਨਸਰਸ। ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਕੁਛ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਰਟਸ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ, ਔਰ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ।
ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਆ ਔਰ ਇਹ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬੇਸਡ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੌਪਿਕ और मास परसेंटेज न्यूमेरिकल मैं इत्थे डिस्कस नहीं कर चुकी बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके सो नैक्सट एंड इंपॉर्टेंट जी टर्म हैगी आ वो हैगी अपने कोले मोलैरिटी। ये पहली वो होगी मास परसेंटेज, सैकेंड ही लिख लो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो भी और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो भी, दोनों तो तुहानूं प्रैक्टिकल्स दे विच भी ये टर्म्स यूज़ होणगीआं बिकॉज उत्थे आपां सॉल्यूशनस प्रिपेयर करते हैं तो उत्थे मोलैरिटी मोलैलिटी यही चीज़ां यूज़ होंदियां। मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन जां सिंपल मोलैरिटी, वेरी फर्स्ट इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल M। कैपिटल M दे नाल आपां इहनूं डिनोट करते हैं एंड इट्स फॉर्मूला इज़ नंबर ऑफ moles of solute divided by volume of solution in liters, ठीक है, in liters है। next number of moles of solute divided by volume of solution in ml into 1000। ਹੁਣ देखो मोलैरिटी की है, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल M। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ कैलकुलेट ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ कि ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ नंबर ऑफ मोल्स ਆਉਣਗੇ सल्यूट ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ नंबर ऑफ मोल्स फाइंड ਕਰੋਗੇ। then वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ਉਹ ਲੀਟਰਸ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अगर वो लीटर्स ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं हैगा ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋਗੇ। अगर मिली लीटर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿ 1000 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। 1000 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ। ਯੂ ਨੋ ਨੀਡ ਟੂ ਕਨਵਰਟ ਇਟ ਸੈਪਰੇਟਲੀ। क्लियर। then number of moles of solute divided by volume of solution, the volume of solution the number of moles, these two things you have to require for that। okay you people need to require for the calculation of molarity and its units are, ਇਹਦੇ यूनिट number of moles ਦੇ यूनिट ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੋਲ MOL। वॉल्यूम ਦੇ यूनिट ਕੀ ਹੈ, ਲੀਟਰ। ਤਾਂ ਮੋਲ ਪਰ ਲੀਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਆ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, यूनिट्स ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ यूनिट्स इंपॉर्टेंट ਨੇ। मोलैरिटी ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ इंपॉर्टेंट ਹੈ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਬਣੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗੀ। मोलैरिटी इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सल्यूशन, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व्ड इन लीटर 1 लीटर ऑफ द सल्यूशन, ਜਿਹੜੇ 1 ਲੀਟਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ डिजॉल्व ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, मोलैरिटी ਹੁੰਦੀ ਹੈ। क्लियर। then ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ मोलैरिटी ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਔਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ NB ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਆਫ ਸਲਿਊਟ ਇਹ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ NB ਦਿੱਤਾ ਮੀਨਸ ਉਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਆਫ ਸਲਿਊਟ ਆ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ ਇਹ। ਕਲੀਅਰ। ਐਂਡ मोलैरिटी चेंज विद टैंपरेचर, इट चेंज विद टैंपरेचर, ये टैंपरेचर के नाल चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ते डिपेंड करती है, ये वॉल्यूम ते डिपेंड करके वॉल्यूम भी जो टैंपरेचर के नाल चेंज हो जाता तां करके मोलैरिटी भी चेंज हो जाती है। यही ये डिसएडवांटेज है, ठीक है, कि टैंपरेचर के नाल ये चेंज हो जाती है बिकॉज जो लिक्विड का जो वॉल्यूम आ वो एक्सपैंड हो जाता विद इनक्रीज इन टैंपरेचर, ठीक है, एंड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता विद डिक्रीज इन टैंपरेचर। क्लीयर। तो फर्स्ट टर्म होगी मोलैरिटी, दूसरी टर्म अपने कोले मोलैलिटी, सैकेंड टर्म किहड़ी है मतलब इस तो बाद थर्ड टर्म हैगी है जिहड़ी मोलैलिटी, मोलैलिटी एंड इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल m, इन्हों आप स्मॉल m दे नाल डिनोट करते हैं, ठीक है, अपर केस लोअर केस, ठीक है। एंड इट्स फॉर्मूला इज़ वेरी सिमिलर टू दैट, m इज़ इक्वल्स टू
number of moles of solute divided by mass of solvent in kg, or if it is in gram then the formula will be number of moles of solute divided by mass of solvent in grams then multiply by 1000 small m। ठीक है, और ये यूनिट्स की बननगे अगेन ऊपर नंबर ऑफ मोल्स मोल नीचे kg पर kg दीज आर द यूनिट्स। और इन्हां दी डेफिनेशनस यूनिट्स एवरीथिंग इंपॉर्टेंट है, जिन्ना भी बुक च गिवन होगा यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द बुक। ओके, दैन नैक्सट की है हुण अपने कोल कि जिहड़ी मोलैलिटी है डज नॉट डिपेंड्स ओवर टेंपरेचर, डज नॉट डिपेंड्स ओवर टैंपरेचर, ये टैंपरेचर ते डिपेंड नहीं करती। सो अगर आप कहना होइए कि मोलैरिटी ते मोलैलिटी चो विच वन इज़ बैटर, तो मोलैलिटी इज़ बैटर। वाई? बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट टू द टैंपरेचर। हुण टैंपरेचर ते क्यों नहीं डिपेंड करती, क्यों? क्योंकि ये की यूज़ हो रहा मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास जोड़ा है वो डिपेंड नहीं करता। दैट्स वाई ये क्वेश्चन आता जनरली विच इज़ बैटर, मोलैरिटी और मोलैलिटी, तो मोलैलिटी इज़ बैटर। वाई? बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट टू द टैंपरेचर, चाहे इन्हू क्वेश्चन की फॉर्म च लिख लियो। ठीक है, बिकॉज अगेन ये क्यों नहीं डिपेंड करती, बिकॉज इट इंक्लूड्स द मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट ते डिपेंड करती है, तो मास डजंट चेंज विद द टैंपरेचर। ओके, तो नैक्सट ये न्यूमेरिकल्स ने, न्यूमेरिकल्स आप देखते हैं मोलैलिटी ते मोलैरिटी वाले। ठीक है, बुक च ने जिदा देखो हुण फस्ट न्यूमेरिकल गिवन है 2.46 ऑफ sodium hydroxide are dissolved in water and the solution is made to 100 centimeter cube in a volumetric flask. Calculate the molarity of the solution. की फाइंड करनी है तुसी, molarity of the solution फाइंड करनी है। ठीक है, हुण इहदे विच की है अपने कोले, जदों तुसी molarity फाइंड करनी है तो सब तो पहला molarity का फॉर्मूला number of moles of solute divided by volume of solution in liters। ठीक है, means you need to require two components, number of moles of solute, volume of solution। Firstly, how will you calculate the number of moles? Write its formula, formulas you have to mention। okay, given mass divided by molecular mass, solute दिया तो इत्थे given mass भी solute दा molecular mass, given mass means in question, which is given in question, you no need to write in question, I am just making you to understand। okay, then whatever is given write down that thing, but have you are given in that question statement 2.46 gram of sodium hydroxide are dissolved in water। इन्ने ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड ਨੂੰ ਆਪਾਂ पानी च डिसोल्व करते हैं, दैट मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड की हो गया सल्यूट, वाटर की हो गया सॉल्वेंट, तो गिवन मास है सल्यूट का, गिवन मास कितना आ गया 2.46। तो राइट डाउन द गिवन थिंग्स, गिवन मास ऑफ solute 2.46 gram, molecular mass or molar mass also given, that is 40 gram। ठीक है, it is also given, तो 40 ये हो गया तुहाडे कोले, 2.46 ये हो गया, इत्थे वैल्यूज़ पुट करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। दैन की लिखा सोल्यूशन इज़ मेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब, मीनस जिहड़ा सोल्यूशन का वॉल्यूम है वो कितना हो गया हुण अपने कोले 100। ठीक है, वो कितना हो गया 100,
मीनस हुण तुहाडे कोले वॉल्यूम भी दिता सल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। हुण इस सेंटीमीटर क्यूब दे विच आ ते 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml दे इक्वल हुंदा है, ठीक है। 1 ml दे इक्वल मीनस ये की आ गया, हुण अपने कोले 100 ml ही आ गया, ml च आ गया। जो ml च हुंदा तां आपां इत्थे 1000 नाल की कर दिंदे आ, मल्टीप्लाई ml इंटू 1000, ठीक है। तो फिर हुण अपने कोले एवरीथिंग इज गिवन। नाउ फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स जे इत्थों आपां कैलकुलेट करांगे, नंबर ऑफ मोल्स, पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, 2.46 डिवाइडेड बाय 40, इट विल बी इक्वल टू 0.0615। इस वैल्यू नूं फॉर्मूले च पुट कर दिए तो मोलैरिटी इक्वल टू 0.0615, we must read it as 615, okay। 100 volume into 1000 and it will be equals to 0.615। ਹੁਣ यूनिट्स तुसीं ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ कैलकुलेट ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ मोल पर लीटर, ਉਹ भी लिख सकते हो। 0.615 मोलर, कैपिटल M भी लिख सकते हो पिछे, दोनों ही राइट ने, पर कुछ ना कुछ दोनों चों लिखिया होना चाहिए। कैपिटल M का मीनस की इत्थे इन्ने मोलर, इनू आपां ये पढ़ते हैं भी इन्ने मोलर सल्यूशन बन गया। आपां किसी ना कंसनट्रेशन रिप्रजेंट करते हैं तो मीनस इन्ने मोलर सल्यूशन बन गया, ठीक है। हुण जदों तुहानूं ये दिता हुंदा है कि X मोलर सल्यूशन है, एक्स मीनस कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो एक्स मोलर जां मोलर, ठीक है, कि सल्यूशन दिता, तो यदा मतलब की हुंदा है कि एक्स मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सल्यूशन। जे तुहानूं एक्स मोलर सल्यूशन दिता तो वह मतलब की हुंदा वो नंबर ऑफ मोल्स आ गए सल्यूट दे, एक्स किंदे च प्रेजेंट आ, वो 1 लीटर ऑफ द सल्यूशन दे विच, क्लीयर। जे हुण ये मोलर है मीनस इहदा की मतलब है कि इन्ने नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर दे विच प्रेजेंट ने, ठीक है। मीनस वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन भी आ गया तुहाडे कोले ते नंबर ऑफ मोल्स भी आ गए, क्लीयर। सिमिलरली एक्स मोलर है, मोलैलिटी तो जिहड़ा कड्डांगे तो ਉਹਦਾ भी की मतलब होगा, एक्स मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। देखो इन्हां दे फॉर्मूले च की फर्क हैगा मोलैरिटी ते मोलैरिटी दे, कि इत्थे वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन है, इत्थे मास ऑफ सॉल्वेंट है, नॉट सल्यूशन। ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि मास ऑफ सॉल्वेंट है इत्थे, ना कि सल्यूशन है, उत्थे ऊपर सल्यूशन है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट सेम है बट नीचे डिफरेंस है, ओके। तो हुण ये अपने कोले आ गया, ये सी इनका मतलब। नैक्सट हुण आपां मोलैरिटी का भी एक न्यूमेरिकल कर लैंदे हैं, ठीक है। दैन तुहाडी एक टर्म रह जाएगी मोल फ्रैक्शन, ते नॉर्मैलिटी 2 रह जाएगियां, दैट वी विल डिस्कस लेटर, ठीक है। तो हुण न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देख लो, वीडियो नूं पॉज करके देख लियो। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सल्यूशन कंटेनिंग 20.7 ग्राम ऑफ पोटाशियम कार्बोनेट dissolved in 500 ml of the solution. Assume density of solution is 1 gram per ml. तो कहने मोलैरिटी फाइंड करनी है तुसी सल्यूशन दी, जिन्ना पोटाशियम कार्बोनेट दिता होया 500 ml ऑफ सल्यूशन। दैन 20.7 ग्राम जिहड़ा गिवन मास, राइट द गिवन मास 20.7, तुसी वीडियो पॉज करके पहले स्टेटमेंट लिख लियो, ठीक है। 20.7 ग्राम आ गया, 20.7 ग्राम तुहानूं गिवन मास ऑफ सल्यूट है। दैन तुसी फाइंड करना होगा, और तुहानूं वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन दिता होया दैट इज़ 500 ml।
then ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ density of solution 1 gram per ml 1 gram per ml ठीक है। गिवन मास का सल्यूट का तो सल्यूट है पोटाशियम कार्बोनेट दैट इज़ K2CO3 ये सल्यूट है। हुण मोलैलिटी फाइंड करनी है तो पहले मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख लो, क्यों? क्योंकि उहदे नाल तुहानूं क्लीयर हो जाता कि तुसीं की फाइंड करना है तो किवें फाइंड करना है। मोलैलिटी इज़ और फॉर्मूला लिख के आना, ये मार्क्स होंदे हैं सल्यूट डिवाइडेड बाय मास, और फॉर्मूले याद भी हो जाते हैं बार बार लिखण नाल। राइट ऑन फेयर नोटबुक एज वेल इन each and every question, okay? Mass of solvent into 1000 in gram, clear? Then number of moles you want. Firstly we require number of moles. For number of moles what we will require? Given mass divided by molar mass। molar mass K2CO3 का फाइंड कर लियो। मैं इत्थे डायरैक्ट वैल्यू लिख दिनी है दैट इज़ 138, ठीक है। कैलकुलेट कर लियो 138 आ गया। गिवन मास अपन दिता सी 20.7, इट इज़ इक्वल टू 0.15। ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए, ये टर्म कैलकुलेट होगी। नीचे हुण आपां नूं की कढना मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट लई अपने कोले की चाहिए, आपां नूं डेंसिटी दिती है। हुण देखो डेंसिटी गिवन है तो डेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करांगे आपां। डेंसिटी इक्वल टू देखो डेंसिटी ऑफ सल्यूशन, ये चीज़ देखनी है भी सॉल्वेंट दी है कि सल्यूशन दी है। तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास भी किहदा होएगा सल्यूशन का, वॉल्यूम भी किहदा होएगा सल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन। डेंसिटी की जगह तो डेंसिटी की वैल्यू पुट करो 1 ग्राम पर ml। मास ऑफ सल्यूशन आ गया अपने को, फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन आप इत्थे दिता होया आपां 500 ml। डेंसिटी च भी ml है तो इत्थे भी मास ऑफ सल्यूशन फिर अपने को फाइंड हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन 500, इनू इहदे नाल मल्टीप्लाई करता तो कितना आ गया 500 ग्राम। ml नाल ml कैंसल हो जाएगा, ग्राम रह जाएगा, एंड इट विल बी द मास ऑफ सल्यूशन। तो मास ऑफ सल्यूशन है जिहड़ा हुण अपने को देखो मास ऑफ सल्यूशन, सल्यूशन किनू मिल के बनया है सॉल्वेंट प्लस सल्यूट। द मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सल्यूट। मास ऑफ सॉल्वेंट आप फाइंड करना है, सल्यूट गिवन है 20.7, सल्यूशन का 500, इनू इहदे चों माइनस करो 500 माइनस 20.7 ग्राम इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा 479.3 ग्राम। ठीक है। दैन नैक्सट हुण इहदियां वैल्यूज़ मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, ये अपने को नंबर ऑफ मोल्स आ गए जिहड़े आपां ने फाइंड किते। दैन दिस the values put करो फॉर्मूले दे विच, you will get the molality। then molality cap small m values 0.15 divided by 479.3 into 1000, it will give you 0.313। small m भी लिख सकते हो यूनिट, मोल पर kg भी लिख सकते हो। ओके, that's all up to you। so try different numericals। if you find any kind of doubt or difficult in solving numericals, just WhatsApp me your queries, okay?